صفت خدا کی ہے ستار العیوب، وہ عیب پہ پردہ پوشی کرتا ہے، عیب کو عام نہیں کرتا. یہ مومن کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں اگر کسی کی کوئی برائی معلوم ہو جائے اور ہم جگہ جگہ اسے جا کر کے بیان کریں، اس کی عزت کا جنازہ نکالیں، تو یہ چیز غلط ہے. اس لیے کہ وہ مومن کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوگا اگر کسی دوسرے مومن کی برائی کرتا ہوا نظر آئے گا یا کوئی کرتا ہوا. خدا نے یہ کہا ہے کہ دیکھو اس کی صفت ستار العیوب ہے، تم اگر دیکھ رہے ہو برائی اور سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس کی برائی کو تمہیں عام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ وہ ستار العیوب ہے. آپ دیکھیں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں. جناب موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑتا ہے تو موسیٰ کے امتی کہتے ہیں پروردگار سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. آپ سب لوگ جو ہے کل ہمارے ساتھ صحرا میں چلیں گے. سارے لوگوں کو جناب موسیٰ اپنے امتیوں کو لے کر کے صحرا میں آئے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ اس میں ایک گنہگار ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا تب تک بارش ہوگی نہیں. اب جناب موسیٰ نے اپنے امت والوں نے کہا کہ دیکھو یہ قحط ہے، بارش نہیں ہو سکتی ہے، اس میں گنہگار ہے، جب تک وہ جائے گا نہیں مجمع سے تب تک بارش نہیں ہوگی. اور اس نے سوچا کہ اگر میں جاتا ہوں تو اتنے انسانوں کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں. اس نے اپنے رب سے دعا کی پروردگار آج مجھے معاف کر دے، اس کے بعد مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں گناہ نہیں کروں. یہ اتنا گڑ گڑا کر کے اس نے دل سے اپنے رب سے دعا کی کہ ابر آ گیا، بارش بھی ہونے لگی. اور اس کے بعد جناب موسیٰ پوچھتے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو تم نے یہی کہا تھا کہ جب تک کہ وہ گنہگار جائے گا نہیں بارش ہوگی نہیں. یہ ابر بھی آ گیا، بارش بھی ہو گئی، ہونے لگی. کہا میرا جو گنہگار بندہ تھا اس نے توبہ کر لی اور اس کے توبہ کو میں نے قبول کر لیا، اسے میں نے معاف کر دیا. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار اس بندے کا نام بتا دے. کہا موسیٰ مجھ سے یہ کیا سوال کر رہے ہو؟ جب وہ گنہگار تھا تب میں نے نام نہیں بتایا تم نے، تو اب تو وہ توبہ کر کر کے میرے سائے رحمت میں آ گیا ہے، اب میں اس کا نام یہاں کیا ہے، یعنی خدا ستار العیوب ہے، وہ عیب پہ پردہ پوشی کرتا. اگر بندے کے اور خدا کے درمیان کوئی گناہ ہے اور صرف دل سے بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اسے معاف بھی کر دے گا. صلوات بھیجتے محمد. اس لیے یہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. لیکن اس کے لیے بندہ صرف دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے. یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر منہ پہ جو ہے تھپڑ مارتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. بار بار گناہ کر کے مذاق نہ اڑائے، گناہ مغفرت کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اگر وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اپنے رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے گناہوں کی معافی مانگے، اس کے بعد وہ گناہ انجام نہ دے، تب خدا معاف کرتا ہے. صلوات بھیجیں. تو عزیزان گرامی یہ تو ہے اللہ کی صفت ہے اور رسول کی صفت حسن اخلاق ہونا چاہیے. اچھا رسول کو اگر آپ دیکھیے اسلام کے جو حضور اکرم نے تبلیغ کی ہے کیا تلوار کی زور سے کی ہے؟ اسلام میں تلوار تو مجبوری ہے، دفاع کے لیے تلوار اٹھائی گئی، ورنہ آپ سے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا. اور یہ یاد رکھیے اخلاق سے دلوں پہ حکومت کی جاتی ہے، تلوار سے وقتی طور پہ سروں کو جھکایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ اخلاق کی کالی ضرب کسی کے دل پہ لگائیں گے تو اس کا دل جھکے گا، وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ دیکھیں حضور اکرم نے اپنے اخلاق سے واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ضعیفہ برابر پھولا ڈالتی تھی. جب بیمار ہوئی رسول اللہ عیادت کے لیے گئے تھے، کہا بدلہ لینے کے لیے، کہا نہیں میں عیادت کے لیے دیتا جاؤں، میں تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں. تو عزیزان گرامی یہاں پہ شاعر نے بھی کہا ہے کہ اگر نہ روز خدا کا نبی وہاں جاتا تو اس کے ذہن کا کوڑا تھا وہ کہاں جاتا. صلوات بھیجیں محمد. یعنی اس کے ذہن سے کوڑے کو نکال کر کے اس کے ذہن میں ایمان داخل کرنا تھا، اس لیے رسول پہ کوڑا پڑنے کے باوجود بھی رسول اس کی عیادت پہ جاتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. یا آپ دیکھیں مکے والوں نے رسول کو کتنا پریشان کیا. رسول پہ کوڑا ڈالتے تھے، اوجھڑیاں ڈالتے تھے، رسول کے کانٹے بچھاتے تھے،
रसूल को पत्थर मारते थे जब आपने तबलीग दीन शुरू की है। लेकिन जब फतेह मक्का हुआ है और रसूल मक्के में आए तो सहाबी रसूल मक्के की गली में अलम ले करके जाता है और कहता है यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन। जब हुजूर अकरम को यह खबर मालूम हुई तो उस सहाबी को रोक करके मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब से कहा तुम जाओ और जाने के बाद मक्के के गली कूचों में ये ऐलान कर दो कि यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, आज का दिन लोगों को माफ कर देने का दिन है। इस्लाम माफ करना सिखाता है, बदला लेना नहीं सिखाता है। सलावत भेजते हमारा इखलाक जो है वो भी बेहतर होना चाहिए, सिफत रसूल की होनी चाहिए। अच्छा, इखलाक बाहर तक की ना हो बल्कि घर के अंदर भी इखलाक होना चाहिए, अपने अहल में भी बेहतर इखलाक होना चाहिए। आप देखें एक रसूल के साहबी हैं साद बिन मास, उनके दिल में ये तमन्ना थी कि मैं शहीद हूँ। रसूल के साथ एक जंग में जाते हैं और जाने के बाद एक जख्म लगता है, यही इनकी शहादत का सबब बनता है। और जब ये इन्हें शहादत मिल जाती है, रसूल इनके जनाजे में चलते हैं तो पंजों के बल चलते हैं तारीख में। और जब बाद में पूछा गया तो कहा इतने ज्यादा मलाइका थे इस जनाजे में साद बिन मास के कि मैं पंजे के बल चल रहा था, इसलिए कि तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था कि कितने मलाइका हैं इस जनाजे में। उसके बाद जा करके रसूल अकरम ने साद बिन मास को सिपुर्द लहद किया, कब्र में लिटाया। साद बिन मास की वालिदा आती कहती मुबारक हो, बहुत खुशकिस्मत हो, इसलिए कि तुम्हारे जनाजे में रसूल शहीद हुए हैं, जन्नत तुम्हें मुबारक। हुजूर अकरम ने कहा तुम्हें कैसे पता कि ये जन्नत में जा रहे हैं? इसलिए कि इस वक्त तो साद के जनाजे पे फिशार कब्र हो रहा है, साद पे फिशार हो रहा है। कहा या रसूलुल्लाह उसके जनाजे में आप शरीक हुए तब भी फिशार हो रहा है। कहा साद जब घर में आते थे तो अपने अहल से तो शुरूई से पेश आते, सख्त कलमात करते थे अपनी ज़ौजा को भी अपने बच्चों को भी। तो इस्लाम ये सिखाता है बाहर के मामलात में अच्छा नहीं रहना है, बल्कि घर के अंदर भी आओ तो अपने बच्चे, तुम्हारे बच्चे देख के तुम्हें सहम न जाए, बल्कि ये समझे कि मेरा बाप है जो घर के अंदर था। सलावत भेजते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं, आप देखें क्या नारा। और एक सिफत है अहले बैत, तीन सिफतों का होना जरूरी है। एक रसूल की कि हुस्न अखलाक होना चाहिए, एक अल्लाह की सत्तारुल उयूब होना चाहिए, किसी का देखे भी तो उस पर पर्दापोशी करे, लोगों से बयान नहीं करे। और एक सिफत है अहले बैत का, जो सिफत है सब्र। यानी अगर किसी भी मोमिन के ऊपर कोई मुसीबत पड़े तो उसे अल्लाह का शिकवा नहीं करना चाहिए, परवरदिगार ये मुसीबत हमारे ऊपर डाल दी थी, ये मुसीबत सारी की सारी हमारे ऊपर उड़ेंगी, नहीं, बल्कि सब्र करें, सब्र करें। लेकिन अहले बैत की मंजिल खुदा की कसम इससे ज्यादा बुलंद है, इसलिए कि वो नेमत के मिलने पे भी शुक्र करते हैं और मुसीबत के पड़ने पर भी शुक्र करते हैं। सलावत भेजते मोहम्मद। यानी जनाब मूसा कासिम का ज्यादातर हिस्सा कैदखाने में गुजरा है, लेकिन जब तारीख में मिलता है नमाज फज्र के बाद में अगर वो सजदे खालिद में सर रखते थे सजदे शुक्र के लिए, तो उस वक्त उठाते थे जब नमाज ज़ोहर का वक्त था, और नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद सजदे शुक्र में सर रखते थे तो उस वक्त उठाते थे जब नमाज असर का वक्त था, और उसके बाद में नमाज मगरिब और इसी तरह नमाज इशा, लेकिन हर वक्त सजदे शुक्र अदा। यानी कैदखाने की सख्त मुसीबतें हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ में इमाम शुक्र परवरदिगार करके ये बता रहे हैं कि देखो हमें नेमत के मिलने पे हम शुक्र नहीं करते हैं, बल्कि मुसीबत के पड़ने पर भी हम शुक्र करते हैं। तलबा से और अज़ीज़ान गिरामी आप देखें कि शब हिजरत जब रसूल अकरम ने कहा बिस्तर पे रसूल अकरम ने अली से कहा कि मेरे बिस्तर पे सो रहो, कहा आपकी जान बच जाएगी, शुरू किया। यानी 40 कुफारों मुशरिकीन की खिंची हुई तलवारों के दरमियान अली चैन की नींद सोए थे, तो उससे पहले जब मौत का पैगाम सुना है कि 40 कुफारों मुशरिकीन हैं, उसके दरमियान मुझे सोना है, तो आपने सजदे शुक्र करके बताया कि देखो हम मौत को भी शुक्र परवरदिगार मौत के लिए भी बचा लाते हैं। यानी वो जनाब इस्माइल थे
जिनसे जब जनाब इब्राहिम ने कहा था इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, तो जनाब इस्माइल ने जवाब दिया था या अबती फल मा तुमर सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा जो आप पे अम्र नाजिल हुआ है आप मुझे पूरा कर दिखाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन। यानी जनाब इस्माइल कह रहे हैं साबिरीन में पाएंगे, लेकिन मौलाए मुत्तकियान से जब कहा बिस्तर पे सो रहो तो शुक्र परवरदिगार करते हुए नजर आ रहे हैं। सलावत भेजिए तो जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ साहिबान ईमान अपने को अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है सिर्फ हम अपने अमाल की तरफ जो है न देखें, हम अपने अमाल को बेहतर बनाने की सिर्फ कोशिश न करें बल्कि अपने अहल-व-इयाल की तरफ भी देखें। यानी अगर कमसिन बच्चे हैं तो उन्हें भी मस्जिद में लेकर के आएँ, उन्हें भी इस बात की तरकीब दें, इस बात के लिए उनको भी मोटिवेट करें, उनसे भी ये करें कि वो भी मस्जिद में आएंगे तो उनके जहन में ये बात, उनके शऊर में ये बात बैठ जाएगी कि जब बड़े होंगे तो फिर मस्जिद ही में नमाज अदा करें। और अज़ीज़ान गिरामी, आज क्या है, हम लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं, बेहतर है भेजना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की नींव को हमें मजबूत करना चाहिए। इसलिए कि जब ये बड़े क्लासेस में पहुंचे तो बेरागबी का शिकार न बन जाए, बल्कि अगर हम इन्हें मदरसे की तालीम देंगे, दीनी तालीम देंगे, उसके साथ में इंग्लिश की तालीम भी देंगे, और इस तालीम को मामूली न समझिएगा, इसकी कितनी बड़ी अजमत है, कितना एहतराम है कि जब मदरसे के लिए बच्चा निकलता है तो मलाइका अपने परों को बिछाते हुए चलते हैं। तो अगर आप जड़ को बच्चे की मजबूत कर देंगे तो वो किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, क्रिश्चियन स्कूल हो, कोई स्कूल हो, वो बेरागबी का शिकार नहीं होगा। और हमें बच्चों को आला तालीम दिलानी है, बच्चों को अच्छे मुकाम पे पहुंचाना है। इसलिए कि जब अपने कौम में सैकड़ों डॉक्टर होंगे, सैकड़ों इंजीनियर होंगे, तो हर इंसान इस तरह देखेगा, सैकड़ों IAS ऑफिसर होंगे, और उसके लिए हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के किरदार अपनाना है। इसलिए कि रसूल अकरम ने क्या इरशाद फरमाया था कि अना मदीनतुल मुबारकुन बाबुहा, मैं शहर इल्म और अलीम से दरवाज़ा। सलवात नहीं करना। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें सिर्फ अपने को जहन्नम से नहीं बचाना है बल्कि अपने अहल-व-इयाल को भी जहन्नम से बचाना है। ये देखना कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे घर में दीदारी है या नहीं है। यानी सिर्फ हम आ जाए मस्जिद में, बच्चे न पढ़ें या बच्चे न उठें या सीने बुलूग पे पहुंच गए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हमें शुरू से बच्चों को इस तरफ राग़िब करना है और बच्चों को अपने साथ में रखना है कि वो भी आगे चल करके दीदार बने। जब वो सीने बुलूग पे पहुंचे तो उन्हें भी पता हो कि शरीयत क्या है, दीन क्या है, मज़हब क्या है। सलवात भेजें मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कि आज ये जवान के ही सारे सवाब की सिलसिले में मजलिस है। मोहम्मद हसन अख्तर, इसका जवानी में इंतकाल हो गया, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी करबला में देखें कि हुसैन का जवान जब आता है इजाज़त लेने के लिए तो कहते हैं मुझसे ज़्यादा हक हमारी खुदी का है। खैमे में जाते हैं, इजाज़त मिल जाती है तो कहते हैं बाबा मुझे खुदी ने भी इजाज़त दे दी और मुझे माँ ने भी। अच्छा बेटा जाओ, लेकिन इतना ख्याल रहे कि मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहे, मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहे। तारीफ मिलता जनाब अली अकबर चले हैं घोड़े पे बैठ करके, कुछ दूर चले थे तो किसी के गिरने की आहट महसूस की, मुड़ करके देखा तो कोई और नहीं बल्कि ज़ईफ़ बाप है जिसे ठोकर लगी है करबला के जंगल में खाक में गिरा। जनाब अली अकबर घोड़े से उतरते हैं, कहते हैं बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था। इमाम हुसैन ने एक हसास जुमला कहा है, बेटा काश तुम साहिब औलाद होते, बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें इस बात का अंदाजा होता कि जवान फर्जंद की रुखसत के ऊपर बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रहा है। आज को मिलल्लाह खुदा किसी कम में न रुला सिवाय में मजलूम में करबला के अज़ादारों सारे मनाज़िर का तज़किरा नहीं करना है। अक़ल से जब एक जालिम ने नेज़ा मारा था, नेज़े की यानी जनाब अली अकबर के सीने में टूट गई थी।